May I come? Yes, please. Please बैठिए. Thank you, sir. अनुज कुमार. Yes, sir. कहाँ से लॉ किया आपने? Sir, I did my law from Chanakya National Law University. Okay. And कौन सी ईयर में? In 2021. 2021. Yes, sir. And after that? Ever since then, I've been practicing for the judicial services, and for a brief period of time, I went to Honorable Patna High Court. Okay. Practice कर रहे हैं आप अभी भी? Just for a few months. Few months. In which side? Yes, sir. कौन सी साइड से प्रैक्टिस किया आपने? Mostly criminal law. मोस्टली क्रिमिनल लॉ. ओके. हम तो आपसे सवाल सीपीसी में पूछने वाले थे. चलिए, पहला सवाल तो आप यही बताइए कि वाई एविडेंस एक्ट इज़ नॉट अप्लाइड टू दी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स. So, the reason why that Evidence Act is not applied to the Arbitration Act, because under the Evidence Act, certain institution or certain institutions have been barred from trying the Evidences Act, which do not fall under the definition of court. Arbitration is not primarily performed by the courts, but they are performed by other tribunals. Thus, Evidence Act does not apply onto them. Okay, whether the person summoned under section 319 of CRPC has the right to be heard on the application. Sorry, sir, I cannot recall it. आप ये बता दीजिए, can a civil suit is filed against the government without giving a notice of section 80? No, under the CPC, for any suit to be filed against the government, certain time period has been allotted, or it has been fixed that mandatorily needs to be performed. Without giving that time period or notice within that time period, a suit cannot be filed against the government. In any situation, if there is an urgency. If there is an urgency, then it can be filed. But as per the general rule, it has to be given within a time period of 2 months has to be given before filing any suit against the government. अच्छा, आप जानते हैं कि हमारे जुडिशल सिस्टम में जो सिविल कोर्ट्स हैं उनकी छुट्टियां कुछ एक्स्ट्रा होती हैं? Sorry, sir. चलिए सर, प्लीज आप पूछिए. आपका फेवरेट सब्जेक्ट है एविडेंस. पहले आप ये बताइए कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका एक्ट नंबर बताइए. अच्छा, ये बताइए, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और जब मैं बात कर रहा हूँ बीएसए की, तो क्या दो डिफरेंट चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं बीएसए में? In the new act, that is the BSA, the major difference with the Indian Evidence Act is mostly regarding the documentary evidences or the electronic evidences that has been changed. Other than that, most of the provisions they are Same. They are mostly as it is. As it is. मतलब एक चेंज आपने बताया, कोई और चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता इसमें? In my as of now best understanding. ओके, आपने बीबीए भी किया है, तो मुझे लगता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पे अच्छा कमांड होगा. तो ये बताइए, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स? Any agreements that are enforceable by law are contracts. एंड व्हाट एग्रीमेंट्स आर एनफोर्सेबल बाय लॉ? All the agreements that the law permits to do, or any agreement which might violate the. What section 10 says? Section 10 gives certain conditions for the fulfillment of any contract. There are 5 conditions in the Section 10, upon fulfillment of which any agreement can be. वो conditions बताइए. There are 5 conditions. The first is that the parties should be legally competent. That is, they should be major and of sound mind. There should be a consideration. There should be a lawful object. There should not be any term that which is expressly declared void by the. Okay, ये बताइए, यदि एक पाकिस्तानी सिटीजन इंडिया में आके कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाए? Under Indian Contract Act, I think it is a valid. आपने बताया कि सेक्शन 11 का रेफरेंस दिया कि who is competent to contract, every person is competent to contract who has attained the age of majority, is of sound mind and is not disqualified by any law. तो क्या आपको लगता है कि एक एनिमी एलियन हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? If the government has declared any Pakistani citizen Okay. or the nation as a whole to be an enemy of our. तो क्या आप मानते हैं पाकिस्तानी सिटीजन के रिगार्डिंग वो एनिमी एलियन नहीं है, या क्या लगता है आपको?
In my honest opinion, I do not think that any country should be declared an enemy as a ओके चलिए मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप मुझे बताइए। सपोज ऐसा हो कि आप पटना में हैं और मैं प्रयागराज में रहते हुए आपको कॉल कर रहा हूँ मोबाइल के थ्रू, और हम आपको एक कार बेचने का ऑफर मैंने आपको किया जो आपने पटना में रहते हुए एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो कार को डिलीवर किया जाएगा आपके पोजीशन में, हम हैंड ओवर करेंगे, वो दिल्ली करेंगे। ठीक, ये बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच कहां पर बना है? क्या पटना में? क्योंकि ऑफर मेरी तरफ से है और आपने उसे एक्सेप्ट किया पटना में रहते हुए, और जो कार डिलीवर की जाएगी वो आपको दिल्ली की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट का प्लेस बताइए कहां पर कंप्लीट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट? As per the provision of Indian Contract Act, in my opinion, I think the contract would be made at the place where the acceptance has been made. Thus, where I accepted your offer, that is in Patna, that would be the place of acceptance. बट आपने लेकिन एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और वो जो कम्युनिकेशन भले ही आपने पटना किया, लेकिन वो कम्युनिकेशन कहाँ कंप्लीट हुआ है? क्या आपको लगता है प्रयागराज कंप्लीट हुआ या ये पटना में ही अभी कॉन्ट्रैक्ट बना है? The communication was accepted on the telephone line. In a landmark case, it was said that when the acceptance on telephone is made, it will be deemed to be accepted from the place where it is made. बट एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आपने यहाँ पर कम्युनिकेट किया पटना में, लेकिन उसका कम्युनिकेशन कहाँ कंप्लीट हुआ है? यदि आपने कम्युनिकेट किया लेकिन उस समय फोन लाइन कुछ प्रॉब्लम कर रहा है या मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? No, sir. If the acceptance is not properly heard by the opposite party or the proposing party, then it will not be deemed to be proper communication. तो अभी भी आप क्या क्या कहना चाहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कंप्लीट हुआ है? Where it was heard, I mean in Prayagraj. ओके सर। ठीक है। अनुज, आपने पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस किया है? To be honest, not a proper practice. I was under a senior for a brief month of 2 or 3 of a brief. ठीक है, सीनियर एडवोकेट के साथ आपने काम किया है ना? Yes, sir. ये बताइए, जब हम पिटीशन को ड्राफ्ट करते हैं तो उसका हम प्रिंट आउट निकालते हैं, तो प्रिंट आउट जिस पेपर पे निकालते हैं उसका साइज क्या होता है? It is of A4 size. A4 साइज। दोनों तरफ लिखा जाता है कि एक तरफ प्रिंट आउट होता है? In Patna High Court, there are certain cases wherein it can be printed on both the sides. Okay. I've mostly seen in the appeal cases, the criminal appeal cases, it can be printed on both the sides. ठीक है। In anticipatory bail cases, I've mostly seen that it is printed only on the one side. साइड। ये बताइए कि पिटीशन के अंदर अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, 161 का स्टेटमेंट, 164 का मेडिकल एग्जामिनेशन, कुछ भी, तो उसके लिए प्रॉपर एक पेज का हम प्रिंट आउट निकालते हैं, उसकी प्रॉपर एक हेडिंग होती है। जैसे सपोज करिए ये कोई पेपर है, ये आपको फाइल में लगाना है। अब जब आप ऑनरेबल कोर्ट को एड्रेस करेंगे तो आप कोर्ट को क्या बताएंगे? In those cases, we name it as annexure. एनेक्शर। ठीक है, गुड। वकालतनामा से आप क्या समझते हैं? Vakalatnama, in legal sense, it is the authority given by the party or the client to the advocate to represent him in the honorable court. ठीक है, ये बताएं अनुज, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है? Malicious prosecution under the definition of torts is wherein one party does not have any ground for prosecuting some other party, but only to defame the other party or bring any insult to him in the society. The baseless arguments or the baseless accusation against the other party, they are called as malicious prosecution. ठीक है अनुज, आपसे मेरा आखिरी सवाल है। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन का जिक्र किया, ठीक है? अब एक व्यक्ति है, दैट पर्सन हैज कमिटेड समथिंग व्हिच फॉल विद इन द पर्व्यू ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है? अब उस व्यक्ति को इस बात का डर है कि भाई मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन एक डर ये भी है कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए पहले मुझे कोर्ट ऑफ सेशन जाना पड़ेगा, वहां रिजेक्ट होगी तो मैं हाई कोर्ट आऊंगा। क्या वो हाई कोर्ट किसी और प्रावधान के तहत आ सकता है अपने अरेस्ट के स्टे के लिए? If his name has been mentioned in the FIR, then as per my understanding, he can approach the honorable court for the quashing of FIR under section 428 of the BNSS, 428 of the BNSS, new act, and earlier it was 482 under the CRPC. that is called inherent power ना? Of the High Court. ठीक है, शुक्रिया सर। अनुज जी, आपके हॉबीज़ है सोलो ट्रैवलिंग, Yes, sir. कहाँ गए हैं आप अभी घूमने? अकेले तो रांची गए थे, बनारस गए थे, अभी रिसेंटली गया गए थे मेंस के रिजल्ट के बाद, राजगीर जा चुके हैं,
राजगीर क्यों फेमस है? Rajgir is mostly these days it is becoming famous mostly for the tourist region. The government of Bihar is making a number of numerous tourist attraction places. Earlier it was mostly famous for the historic and cultural things. ओके, आप मुझे बताइए एज ए सोलो ट्रैवल हमें किन किन गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती है? As a solo traveler these days, one of the most important thing is our mobile. The other thing I personally feel is lots of cash, because even today in most of the remote places or at times the mobile communication is not that proper, wherein if we have to make certain payments, then cashes are mostly useful. ओके, आपने BA LLB किया है, कहाँ से किया आपने? चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी। CNLU। जी सर। इसमें चाणक्य जो वर्ड आया है, जी सर। इनके बारे में बताइए कुछ। So Chanakya has a great historical figure in the history of Bihar and India. He is believed to be one of the biggest economics in the history of India. He is believed to be one of the founders, not the founders precisely, but somebody who इनकी बुक का नाम बताइए। अर्थशास्त्र, which I can recall right now. अर्थशास्त्र किस पर बेस्ड है? इकोनॉमी पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, किस? As the name suggests, I think it is based on economy. नहीं, इट्स बेस्ड ऑन अ पॉलिटी। Okay, sir. एंड मुझे बताइएगा अभी वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी चर्चाओं में है, आपका क्या ओपिनियन है, सही है गलत है? In my opinion, as it is being projected these days, that different states, different panchayats, and the nation as a whole, they have a different election, and every time or throughout the period of 1 year, any state they have election, which as per the reasoning of the supporting party, they feel that numerous amount of money is being wasted or being utilized along with huge man force. So if the entire election is conducted at once, चलिए, ओके। बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? there are 243 Lok Sabha seats in Bihar. 243. लोकसभा सीट। Oh, sorry, 40. I missed. आर यू श्योर? Yes, sir. 40 seats in Lok Sabha. ओके ओके। एंड चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट एट दिस टाइम? Kumar Vinod Chandran. कहाँ से हैं ये? He is from Kerala. ओके, प्लीज सर। Okay. What is the stage to challenge the genuineness of a document in the civil case as well as the criminal case? In the civil cases, the genuineness of any document should be challenged at the very stage where it is being introduced by the party. Sorry. Exhibits सुने हैं आपने? Yes, sir. Exhibit. Exhibit. Yes, sir. तो exhibit क्या होता है और कब डलता है? Exhibits are, I think, in my opinion, they are the. If the document is exhibited, what is the meaning? It is being, I think, presented to the honorable court to have a look in that document. चलिए ठीक है, ओके, अब आप जा सकते हैं। Thank you, sir. अनुज बैठिए। पहले आपको क्या रियलाइज़ हो रहा है, कुछ बताना चाहेंगे? वो थोड़ा रिवीजन ज़्यादा करना होगा। और इसके अलावा? यस सर। और कुछ इसके अलावा? इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कुछ माइनर एक्ट मेरे से बच गए, जैसे एडवोकेट एक्ट और बिहार में एक्साइज एक्ट और NDPS एक्ट, ये सब रिवाइज करना है और मेनली नोट्स रिवाइज करना होगा, बिकॉज मेंस के रिजल्ट के पहले 2-3 महीने हम कोर्ट जाना शुरू कर दिए और ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया है, बट वो एक एक्यूरेसी जो है। चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है। ऑल्दो आप बहुत अच्छी नॉलेज है आप लोगों की आपके पास और आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्रेस भी किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आपको काम करना है। एक तो आप प्रैक्टिस मेंशन कर रहे हैं, तो उसकी जो भी प्रैक्टिकली कीवर्ड्स हैं
जो कोर्ट्स में यूज़ होती हैं उसके बारे में आप डिटेल स्टडी कर लेंगे प्लीज़, ठीक है। जैसे सर ने भी क्वेश्चन पूछे थे किस तरह का पेपर होता है। एंड सेकंड, कोर्ट के बटन आप खोल लेंगे वहाँ पर तो ठीक रहेगा। दोनों हाँ, दोनों खोल लेना। जैसे ही आप बैठेंगे हाँ, एकदम खोल के बैठेंगे। ठीक है। ड्रेस वॉइस आपकी ठीक है। आई कांटेक्ट थोड़ा सबको देखते हुए आंसर करें, ठीक है। एंड हैंड मूवमेंट हो रहा था आपका एक, तो ये वो घड़ी आपकी जो ना ज़्यादा वो जी है, हटा देंगे अभी हाँ हम। ये वाली हटा देना, मैंने लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है। एंड बाकी तो आपने लॉ से रिलेटेड अच्छे आंसर करें, सर लोगों ने बता दिया। मैंने आपसे आपकी हॉबी क्यों पूछा था, सोलो ट्रैवलिंग, तो उस पर कोई सटीक आंसर नहीं आया, ठीक है। तो उसमें मैंने पूछा था कि कौन कौन से गैजेट्स रख सकते हैं। गैजेट्स लाइक भाई सोलो है तो आपके पास प्रॉपर क्लोथ होने चाहिए, बारिश पड़ रही है तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए, कुछ सम मेडिसिन्स होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। प्रॉपर शूज़ होने चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर थोड़ा सा और रिसर्च कर लेना आप। और कोई एक दो एग्जांपल सोलो ट्रैवल का, जैसे वास्को डिगामा है, ठीक है। वो डॉल मतलब हम सोचे कि जहाँ अगल बगल ही गए वो थोड़ा तेजी सोलो ट्रैवलर मतलब वर्ल्ड के कॉन्टेक्ट, वो कैश हैवी कैश की जगह आप सफिशेंट कैश बोलिए, बट ठीक है। हैवी कैश मतलब बहुत, आपने बोला कि बहुत ज़्यादा कैश नहीं, क्योंकि सफिशेंट। एक्सपीरियंस हो चुका था। रांची गए थे हम लोग, हाँ, तो वहाँ पे क्योंकि थोड़ा आउटस्कर्ट है, वो जंगल वाले एरिया है, हमारा नेट वेट कुछ नहीं वहाँ पे एक प्रॉपर वर्ड होगा सफिशेंट Okay. पहले, ठीक है। बस इस पे ध्यान कर लीजिए। और थोड़ा ये बिहार के बारे में पूछा था, आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, प्लीज़। और इस पे चाणक्य के बारे में भी आप कुछ नहीं बता पाए हैं, फैक्चुअल डेटा कौन थे, इनकी बुक का गलत बता दिया आपने। एंड ये इनका विष्णुगुप्त नाम था, ठीक है। घनानंद के समय ये प्रधानमंत्री बनाया था उन्होंने इसको। तो आप थोड़ा सा इस पे स्टडी कर लीजिए। बाकी लॉ में तो आपका परफेक्ट है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। कुछ पूछना है आपको? ये जो मेरा 2-3 महीने का जो ब्रीफ पीरियड था प्रैक्टिस का, ये हमको मोस्टली अगर कोर्स में पास ओवर होता है, नहीं, जो आपने बताया बहुत अच्छा बताया। पास ओवर होता है, हम करने को बहुत होता है, हाँ मुश्किल होती है। हम लोग को 2-3 बार मौका भी मिला था अपीयरेंस का। पास ओवर कराने का। पास ओवर के बाद जैसे एंटिसिपेटरी बेल ये सब मिला था, तो ये मेंशन करना ठीक रहेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाई कोर्ट के एक जस्टिस बैठे होंगे आपके बोर्ड में श्योरली। ओके सर, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि 2-3 महीना बहुत कम टाइम होता है, वो कुछ मे भी ऐसा पूछ सकते हैं जो हम नहीं बता सकें। नहीं नहीं नहीं, कुछ थोड़ा और रिसर्च कर लेना, तब तक टाइम है, 1 महीना तो लग जाएगा विंटर। छठ के बाद शायद, हाँ ठीक है। छठ कब है? नवंबर के स्टार्टिंग में शायद। हाँ उसके बाद ही होगा। उसके बाद ही, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है, ओके।